Kazakhstan is a vast and sparsely populated country of Central Asia. On its northwest lies Russia and on its southeast lies China. 1991 में जब USSR ख़त्म हुआ तो इनके कम्युनिस्ट लीडर थे नूर सुल्तान नाज़रबायेव. He became the country's president and he remained so for a better part of 3 decades. In 2019, in a very surprising move, he resigned. But his hand-picked successor, Kasim Tokayev, became the country's president. One of the first acts that Tokayev took once he held reign was to rename the country's capital Astana to Nur Sultan, signaling that do not expect radical change. This was the background of Kazakhstan. Presently, it's in crisis, to say the least. Because usually जो भी उनके मामलात या मसाइल ख़राब होते थे वो national level पे होते थे, but for the very first time in history they have seen international crisis. Why I say international वो मैं इस वीडियो के later half में बताऊंगा. For now let me just tell you कि situation बनी क्या and जो इतने protest erupt हुए उनका background क्या है. जो tipping point है जो actual में जिस चीज़ ने trigger किया was the rise in oil prices. But that is just the tip of the iceberg. उसके background में एक detailed animosity है या animosity थी काज़ाकिस्तान के लोगों के अंदर. It should be noted over here that Kazakhstan is a country that is immensely rich when it comes to oil, gas and other natural resources. So for a country like that, उसकी जब oil prices इस हद तक rise कर गई, तो people were of the opinion के why is this happening? उनके पास एक sense of stagnation तो already थी. मतलब 3 decades से authoritarian regime चल रही थी and the people wanted a more open political setup which was not being provided to them. तो situation कुछ इस तरह से बनी कि narrow elite domination एक another point है जिसने animosity create की हुई थी like I stated before. प्रोटेस्ट जो थे उनके वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर इरप्ट होते हैं, ठीक है, और वेरी क्विकली दे बिकेम नेशनल. मतलब पूरी मुल्क के अंदर मतलब हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा लोग बाहर आ गए एंड जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस थी दे क्लैश्ड आपस में. तो अब इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि उनकी लार्जेस्ट सिटी है काज़ाकिस्तान की, अलमती. उसके मैं आपको कुछ सीन्स यहाँ पे बताता हूँ. व्हाट हैपेंड ओवर देयर कि द पीपल स्टॉर्म्ड द मेयर्स ऑफिस, उसको आग लगा दी उन्होंने. उसके अलावा जो नूर सुल्तान का एक उन्होंने व्हाट से मुजस्समा बनाया हुआ था उसको गिरा दिया उन्होंने. जो एयरपोर्ट था उसको उन्होंने सीज कर लिया और डेमोन्स्ट्रेटर्स दे इंश्योर्ड कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक जाएं एंड यू नो सिचुएशन इस हद तक ख़राब होगी. पुलिस ऑन दी अदर हैंड दे यूज्ड स्टन ग्रेनेड्स, वाटर कैनन्स and tear gas to disperse these demonstrators, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया because the people they were of the opinion that we have had enough and this needs to stop now. यहाँ पे मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ according to which half of the Kazakhstan lives in remote areas under immense poverty. So you see reservations तो थी लोगों के दरमियान में, मतलब इश्यूज तो थे उन्हें अथॉरिटेरियन रिजीम के साथ ऑलरेडी. तो अब जब ये ऑयल प्राइसेस राइज हुई तो सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा एस्केलेट कर गई. टू मेक मैटर्स वर्स, Tokayev, the president of Kazakhstan, he gave the orders of shoot to kill. He said मतलब this needs to stop, bring the issues under control and do whatever that it takes. मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आप अपने ही लोगों को मतलब मार दो. That was a bit uncalled for, but authoritarian regimes में ऐसा ही होता है. Moving on, अब यहाँ पे ये तो national scenario था. I'll just head on towards the international arena कि वहाँ पे situation किस तरह से बनी, because रशिया की involvement नज़र आती है. That is located in the northwest of Kazakhstan. 2,500 paratroopers from Russia, they landed in Kazakhstan and they were invited by the Kazakhstan president Tokayev. इसके अंदर जो उनका रीज़न बना, मतलब कि उन्होंने किस चीज़ को यूज़ करके, क्योंकि आप इंटरनेशनल आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे यूनाइटेड नेशन हरकत में आ जाएगी कि आप
उनके नेशनल इशू के अंदर आप किस तरह से अपने मुल्क को भेज रहे हो। तो यहाँ पे उनकी एक अपनी ना डील थी, जब 1991 के अंदर यूएसएसआर डिस्पर्स हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO बनाई गई थी। एंड इसके अंदर रशिया था, काज़ाकिस्तान था, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड अर्मीनिया, ये इन ममालिक की आपस में एक ट्रीटी थी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सो यूजिंग दैट तोकायेव ने इनवाइट किया रशियंस को, एंड द रशियन स्टेटेड दैट वी आर सेंडिंग आवर पीस कीपिंग मिशन एंड इट्स नथिंग मोर देन दैट। बट ऑब्वियसली जो यूएस है दैट कुड नॉट जस्ट सिट बैक एंड वॉच while there were movements as aggravated as this। तो व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आया, एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन he showed his reservations too, and he said we will watch closely कि रशियंस क्या कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, तो मतलब ये वाले सारे पॉइंटर्स फिर सामने आए। अच्छा, अब रशिया ने अपना एक और स्टांस यहाँ पे दिया कि हम लोग अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, गैस पाइपलाइंस को, रशियन मिलिट्री बेसिस को एंड द रशियन स्पेस स्टेशन दैट इज इन बाइकनूर, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं, सो दैट ये जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? काज़ाकिस्तान की हुकूमत ने इस टाइम कंसेशंस देने शुरू कर दिए। जो LPG पे प्राइस कैप था जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन एस्केलेट की थी, उसको उन्होंने ऑन होल्ड कर दिया है, एंड मिनिस्टर्स से रेजिग्नेशंस लिए, मिनिस्टर्स हैव बीन सैक्ड, एंड तोकायेव ने कहा कि यू हैड जस्ट वन थिंग टू डू टू कीप द इन्फ्लेशन इन चेक व्हिच यू फेल टू डू सो नो पॉइंट ऑफ यू हैविंग ओवर हियर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नूर सुल्तान, जो नाज़रबाएव जो एक्स प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ही वाज द हेड ऑफ इट, उनको फॉर एवर हमेशा के लिए उनको हटा के वो पोस्ट भी तोकायेव ने खुद संभाल ली है। सो ये थोड़े से इंटरनल मामलात हुए हैं, सो दैट शायद जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनके साथ कुछ बातचीत हो सके, उनको कुछ समझाया जा सके कि हाँ हम बेहतरी करेंगे, वी विल लिसन टू यू। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट ईजी नाउ, बिकॉज अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ जब लोग बाहर निकलते हैं तो यूजुअली दे डू नॉट स्टॉप अंटिल दे गेट व्हाट दे वांट, एंड इन दिस केस they want a more open political setup।